Thank you for joining us on this Saturday evening in Pakistan and morning here in United States and around the globe. Um, Today is a very special session because as you have seen, if you have followed us on this webinar series, that mostly when we talk about different pharmaceutical uh, uh, projects as well as medical devices and biomedical technology, one name keep coming up, and that is DRAP. Most people know, but some people may not know that DRAP is the equivalent of FDA in North United States, and obviously it's a very important body, and so we have heard both things. DRAP is changing. DRAP is coming up with new regulations. DRAP is revamping its structure because there have been some hurdles in the past and some negative things in around the circles. So today I'm very honored that the CEO of the DRAP, which is the Drug Regulatory Authority of Pakistan, is joining us. He's a postgraduate in pharmaceuticals with 25 plus years in drug regulation, good governance, and civil services of Pakistan. Mr. Asim Rauf is currently posted as the CEO of the Drug Regulatory Authority of Pakistan. He had the opportunity to closely study the regulatory system of the United States of America and remained an active participant of regulatory arrangements, strengthening programs of WHO, where he has represented Pakistan on multiple occasions. Mr. Asim Rauf has worked for reformation of regulatory sector, harmonization of regulations for the drugs, medical devices, and alternative medicine, and has envisioned the first fully automated integrated regulatory information and management systems in the region, which has now been developed in DRAP. His area of expertise include drug laws, good manufacturing practices, compliance, pharmacovigilance, and supply chain management, which again we hear a lot these times, and we will also, that would be my question, how is the supply chain going, and administration in the government sector. So he actually embodies everything that a CEO of a drug regulatory authority should have. So without further ado, I welcome him to start his presentation, and then we'll have some Q&A session, and our panelists I'll introduce later. Thank you very much. जी, मैं एक प्रेजेंटेशन है जो कि एक पूरा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो बताती है, मैं उससे शुरू करूंगा और इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपके जो सवालात हैं वो लूँगा। आपका बहुत शुक्रिया सारे जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं और मुझे इनवाइट करने का, डॉक्टर उज़ैर साहब और डॉक्टर शाहिद साहब और बाकी दूसरे कोलीग्स जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और एक मौका फराहम किया कि मैं एक अपने यूनिक एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ, और जिसे मैं बाज़ दफ़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस भी कहता हूँ जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है। और अभी डॉक्टर उज़ैर साहब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की जो ग्राउंड सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जब आप उसके साथ कपल करके देखते हैं तो ये वाकई एक अमेजिंग जर्नी बनता है और लाइक फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, और बट यू नो कि यही चीज़ मुझे और ज़्यादा एनर्जाइज करती है कि जब ये इतनी ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं और डिफ़िकल्टीज भी हैं, हर्डल्स भी हैं,
और फिर अगर हम अपना मंजिल को अचीव करते हैं तो दैट वुड बी रियली अमेजिंग, और पाकिस्तान के जो रेगुलेटरी सिस्टम को एक मॉडल के तौर पे आप सामने, दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन है, वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। थेराप्यूटिक गुड्स रेगुलेशन। रेगुलेशन हम सारे समझते हैं कि लीवर इन स्टेट पार है, क्रिटिकल इन शेपिंग वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज। जर्नल इसका एक ओवरव्यू है कि क्यों रेगुलेशन की ज़रूरत होती है किसी सोसाइटी में, और regulations and regulatory frameworks to be in public interest। ये जनरलाइज्ड रेगुलेशंस की बात है कि कोई भी सोसाइटी विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती और महजब नहीं खिला सकती। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये आता है कि इफेक्टिव रेगुलेशन क्या करती है किसी भी सोसाइटी में। तो वो हेल्प करती है इन रिकवरी फ्रॉम क्राइसिस, एंटिसिपेट करती है रिस्क को और मैनेज करती है उस रिस्क को, और सस्टेनेबल ग्रोथ की वो एक जो है मैं समझता हूँ कि सपोर्ट होती है एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये रेगुलेशन। फिर जब हम उससे भी आगे फर्दर बढ़ते हैं, थेराप्यूटिक नैरो डाउन होते हैं टुवर्ड्स थेराप्यूटिक गुड्स रेगुलेशन, तो वो डेफिनेटली उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हेल्थ के को प्रोटेक्ट करती है। और जो रेगुलेशन इन थेराप्यूटिक गुड्स वो इंश्योर करती हैं क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स, ऑफ द थेराप्यूटिक गुड्स, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ एक्सेस टू न्यू ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये अच्छी रेगुलेशन जो है ये दो तीन काम वो करती है। एक्सेस देती है अपने जो लोग हैं उनको अवेलेबल होनी चाहिए जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स हैं, और वो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट सारी की सारी उनकी क्वालिटी, एफिकेसी और सेफ्टी जो है वो स्टैब्लिश होनी चाहिए। जी, थेराप्यूटिक गुड्स रेगुलेशन फर्दर हम आसिफ साहब, उसको स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही, प्लीज स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। ये मैं कहने वाला था, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि स्क्रीन आ जाए। अच्छा सॉरी, वो एक सेकंड जी। जी अभी आई है? नहीं, अभी भी नहीं आई है। नीचे ये शेयर स्क्रीन का एक ग्रीन बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। जूम पे शेयर स्क्रीन ग्रीन बटन होगा, शेयर स्क्रीन लिखा होगा, उस पर क्लिक करें और नेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके नीचे शेयर पे दोबारा क्लिक करते हैं। सर आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन आप व्हाट्सएप कर दें, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अभी हो गई है, हो रही है बिल्कुल जी। अब इसको स्लाइड शो पे लगा लीजिएगा जी। सॉरी फॉर दैट जी। अब आ रही है जी? जी, इसको स्लाइड शो पे कर लें जरा। ये आपके राइट बॉटम में ना एक कप टाइप बटन बना होगा, उस पे क्लिक कीजिए। Just click F5. Function 5 button दबा दें, it will go into. Oh no. अच्छा जी, कंट्रोल F5 में भी नहीं, इसको कैंसिल करें। ऊपर भी अगर आप देखें स्लाइड शो की ऑप्शन आ रही है, ऊपर बार में देखें ना, ये स्लाइड शो ऊपर ही है यहाँ पे जी। इसको कैंसिल करते हैं जरा, इसको भी कैंसिल।
चलिए इसको बेशक आप बैकवर्ड कर दें, आप उस पर क्लिक कीजिएंगे तो खुद ही चला जाएगा, कैंसिल कर दें उसको। कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर स्लाइड शो पे ऊपर क्लिक करें। और ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर। ये स्लाइड नहीं, राइट जी साइड। इसी बार में आगे आगे चलते जाएं, स्लाइड शो। जी नहीं, इधर नहीं आ रहा। नहीं, अभी हमें अभी नजर आ रहा है स्लाइड शो, ट्रांजिशंस के साथ, एनिमेशंस के साथ स्लाइड शो। आपका कर्सर नहीं, नीचे आ गया। अब आपका कर्सर जो है ना, वो ऊपर जहाँ व्यू, रिव्यू, स्लाइड शो, एनिमेशन, या फिर इसी तरह अब शुरू राइट कर। बॉटम में देखिए, राइट बॉटम जहां जूम की ऑप्शन आ रही है ना, उसको प्लस और माइनस, उसके साथ जी कप का हाँ, एक बटन बना हुआ है, आ रहा कप है कप जी। कप टाइप बटन बना हुआ है, वो कप टाइप बटन पे क्लिक करें। जी अभी मेरा ख्याल है वो अभी शुरू हो रहा है स्लाइड शो। नहीं, वो click हुआ। जी इसको कर दें, फ्रॉम करंट स्लाइड कर दें, इस पे जो ऑप्शन आ रही है ना, अभी जो आपने क्लिक किया, ठीक है, हाँ, इसको ये क्लिक। करंट स्लाइड पे है, चले हाँ, ठीक चलें, है। ओके। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आसिम जी भाई, लेट्स थोड़ा सा ब्रीफली कर दें ये जो शुरू आपने किया था। सॉरी फॉर द डिले ऑडियंस। जी, तो ये जो है मैं बता रहा था, थेराप्यूटिक गुड्स रेगुलेशन के हवाले से 2-3 स्लाइड्स अभी हुई थी। एविडेंस बेस क्यों जरूरत है उसकी, रेगुलेशन की, और थेराप्यूटिक गुड्स पे हम आए थे। एविडेंस बेस्ड रेगुलेशन जो है वो नीट है किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए। वो हेल्प करती है रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग जो है वो, उसमें जो भी एविडेंस आपके पास होते हैं, और ये डेवलप करती है ये आपको रिस्क बेस्ड अप्रोच को, और साथ ही साथ ये प्रोएक्टिव इन नेचर होती। फिर थेराप्यूटिक गुड्स फर्दर कैसे असिस्ट करती हैं निज़ाम में, वो गुड गवर्नेंस, लीडरशिप एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटेबिलिटी, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये इसका जो एस्पेक्ट्स हैं एक अच्छी रेगुलेशन के। मेरा ख्याल फॉरवर्ड नहीं हो रही है आपकी प्रेजेंटेशन, अगर आप कर रहे हैं तो। जी जरा एक चेक करेंगे जी। तो हम बात कर रहे थे ये इफेक्टिव रेगुलेशन जो, उसके हवाले से थेराप्यूटिक रेगुलेशन प्रोटेक्ट्स हेल्थ, इंश्योर क्वालिटी। नेक्स्ट स्लाइड, ये हो गई थी। जी नेक्स्ट जी। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा बता चुका हूँ। एविडेंस बेस्ड रेगुलेशन जो है उसकी ज़रूरत होती है, गुड गवर्नेंस ये डेवलप करती है, और बेंचमार्किंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ये उसका एक जरिया होती है। जी नेक्स्ट, यहाँ तक हो चुका था। अच्छा, द रीज़न रेगुलेशन आप सबको पता होगा, लेकिन ब्रीफली मैंने सोचा कि ये बताया जाए कि जी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत महसूस हुई थैलिडोमाइड ट्रेजेडी जब हुई, और उस वक़्त बहुत सारे जो रेगुलेटर्स और दुनिया की जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो मिलकर बैठे कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया जाए कि जी ड्रग्स को हर तरह से, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, रिसर्च से, क्लिनिकल ट्रायल से लेके उसकी मार्केट एक्ट जब तक वो हो जाती है, उसके बाद भी उसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसको रेगुलराइज किया जाए और उसको गवर्न किया जाए, और रेगुलेशंस के उस पूरे एम्बिट के अंदर उसको लेके आया जाए। थैलिडोमाइड ट्रेजेडी जो है ये बेसिकली बहुत जो जदीद जो है हमारी रेगुलेशन, उसकी बुनियाद बनी थी। नेक्स्ट, पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान का केस आता है जो कि हम ज़्यादा इस पे फोकस करेंगे। पाकिस्तान में 1976 से पहले एक जो इरा गुजरा, वो ड्रग एक्ट 1940 एक्चुअली जो है वो उसको टेक केयर कर रहा था विद रेफरेंस टू ड्रग्स। 1976 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ड्रग एक्ट दिया, और ये ड्रग एक्ट मेनली फोकस करता था ड्रग्स के ऊपर। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि थेराप्यूटिक
गुड्स को अब वो फोकस करता है, लेकिन उस वक्त वो ड्रग को फोकस करता था। बहुत से रूल्स अप्रूव हुए और उनको इम्प्लीमेंट किया गया। मेन सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया कि वो ड्रग के हवाले से था, और 45 सेक्शंस जो है उसमें वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स को उसमें वो डील करते थे। फिर जो रूल्स उसमें जो फ्रेम किए गए वो रेगुलेट करते थे लाइसेंसिंग को ऑफ द ड्रग्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, एडवर्टाइजिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और एफआईडी की जो पूरी की पूरी जो वर्किंग है उसको, एफआईडी मींस फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स, जिन्हें ऑडिटर्स कहते हैं आप उधर, और गवर्नमेंट एनालिस्ट की वर्किंग को, एपलेट बोर्ड उसको, उसके लिए रूल्स बनाए गए, प्रोसीजर्स बनाए गए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये मेजर एरियाज थे विद रेफरेंस टू ड्रग्स जिसके ऊपर काम किया गया। जी उस दौर में हमने, मैं समझता हूँ कि एक स्टैटिक पीरियड गुजारा, जो मैं इसको ऐसे लूंगा कि एक स्टैटिक पीरियड था जिसमें एक इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई 76 के बाद, और इंडस्ट्री परहैप्स मैं समझता हूँ कि उस तरह कंपैटिबल नहीं थी इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, और ये ज़रूरत महसूस हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम के ये जो एक्ट है इसको या इस वर्किंग को बेहतर बनाया जाए। इस वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए, और उसके पीछे काज आई, एक रीजन बनी उस चीज को आगे लेके जाने के लिए, वो आप सबको शायद पता ना हो, लेकिन कुछ लोगों को पता होगा कि पीआईसी का एक वाकया हुआ, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का एक इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट ने मजबूर किया कि एक इफेक्टिव ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद होनी चाहिए, जो जिस को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरह उसकी वर्किंग को स्टैब्लिश किया जाए कि इस जैसे वाकयात ना हो। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का वाकया एक एडल्ट्रेशन का वाकया था। एक मेडिसिन जो आइसोसार्बाइट जो हार्ट के लिए यूज होती है, उसमें एंटी मलेरियल मेडिसिन पायरीमेथामिन मिक्स हुई थी, और उससे कोई तकरीबन 300 से ज्यादा डेथ्स हुई थी। उस बुनियाद पे जब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप देखें कि ये एक छोटा सा साइकिल है कि ड्रग एक्ट मौजूद था, उस वाकये ने जो है ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ सफर किया। उसके दरमियान में 18th अमेंडमेंट आई। उसी दौरान 18th अमेंडमेंट में जो हेल्थ का शोबा है उससे सूबों को दे दिया गया, लेकिन उस वाकये ने और ये हमें मजबूर किया कि जो रेगुलेशन है इसको सेंट्रल लेवल पे लेके आना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 144 जो है उसके तहत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कायम की गई, और ये था 2012 नवंबर की बात। नेक्स्ट। जी अब जी अब आज के दौर में इस ड्रैप के आने के बाद, इसके एक्ट के आने के बाद, ड्रैप एक्ट 2012 के आने के बाद, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिवाइडेड हैं। डिवाइडेड इन सेंस कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं कुछ फंक्शंस वो मॉनिटर कर रही हैं, उनकी रेगुलेशंस वो कर रही हैं, और मेजर फंक्शंस जो हैं वो फेडरेशन जो कर रही है, जो कि ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कर रही है। ड्रैप के अगर आप देखें तो फंक्शंस 7 इस वक्त मेजर फंक्शंस हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी लाइसेंसिंग ग्रांट की जाती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स की जाती है, एनलिस्टमेंट ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस और हेल्थ एंड ओटीसी प्रोडक्ट्स की जाती है, प्राइसिंग की जाती है एलोपैथिक ड्रग्स की, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन जो है वो यही एक्ट डील करता है, टेस्टिंग ऑफ दी जो मेडिसिन है वो इस एक्ट के अंडर आती है, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम इन पाकिस्तान जो इस वक्त है जो कि मेनली विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल फर्म्स, वो ड्रैप एक्ट केटर करता है, और क्लिनिकल ट्रायल्स ये जो है वो ड्रैप एक्ट इसको देख रहा है।
अगर हम आगे चलें तो जो डिवाइडेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से 3 फंक्शंस जो हैं वो प्रोविंशियल सेटअप में आते हैं, जो कि चारों सूबों में जो हर सूबा अपने तौर पे देखता है। उसमें सेल है, स्टोरेज है और डिस्ट्रीब्यूशन है। जो मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और जो स्टोरेज विद रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन भी इसका एक पार्ट है। और ये सारे के सारे जो है वो प्रोविंशियल सेटअप में जो है वो देखा जाता है इसको। नेक्स्ट। ड्रैप्स पाथ टूवर्ड्स रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग। अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा हमारी एक एवोल्यूशन आपको जो नजर आएगी, मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि ड्रैप एक्ट जो है वो 2012 में आया। इसका स्कोप बहुत बड़ा हो गया। थेराप्यूटिक गुड्स इसमें आ गई, जिसमें जैसे हमने जिक्र किया हेल्थ एंड ओटीसी, मेडिकल डिवाइसेस वो शामिल हो गई। और जो बायोलॉजिक्स और ड्रग्स जो हैं तो वो इस जो है उसको भी इसके एम्बिट में लेके आया गया, बायोलॉजिकल्स को, जो कि पहले भी थी लेकिन इस पे जो है ज्यादा इसमें उसको जो है टेक केयर करने के लिए रेगुलेशंस को मजीद सख्त बनाया गया। फिर हेल्थ एंड ओटीसी 2014 में अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से जो है काम हुआ, और 2014 में हेल्थ एंड ओटीसी के रूल्स जो हैं वो आए। उसके बाद अभी तक हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड ओटीसी की एनलिस्ट कर चुके हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा नंबर्स में, और बहुत सारे यूनिट्स जो हैं उनको भी हम एनलिस्ट कर चुके हैं। फिर मेडिकल डिवाइसेस 2018 में मेडिकल डिवाइसेस के जो है वो रेगुलेशंस आई, और मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन की थी। एनलिस्टमेंट, इंपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ये उसके तहत किया गया। और ये फर्स्ट टाइम अप्रूव्ड, फर्स्ट पाकिस्तान मेड कार्डियक स्टेंट, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कार्डियक स्टेंट्स जो हैं वो बने, और उनको भी जो है वो एनलिस्ट किया गया या रजिस्टर किया गया। क्लिनिकल ट्रायल्स हुए पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स के, आपको पता होगा, और उसकी बुनियाद पे 2 वेंटिलेटर्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन भी ग्रांट की गई। तो ये जो सफ़र हमने शुरू किया था 2012 में, उसमें आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेशंस जो हैं वो डेवलप होती गई, और उनको एक्सरसाइज, उन रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली हमने एक्सरसाइज भी किया, उनको इम्प्लीमेंट भी किया, उनको प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी दी। और ये जो मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ ये उसी बुनियाद पे फिर हमने उनको किया। फिर हार्मोनाइजेशन 2021, ये सफ़र करते करते हम एक स्टेज पे अब पहुंचे हैं कि जब हम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस की तरफ बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और ड्रैप जो है वो वाले स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करने की तरफ रवां दवा है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हों, और क्वालिटी और एफिकेसी ऑफ दी जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसी हों कि जो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में लेके जाके आप उनको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी, ये रेगुलेटरी लैंडस्केप है। आप देखें फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हमारे पास तकरीबन 620 ऑपरेशनल हैं, वैसे 700 से ऊपर हैं, लेकिन इस वक्त 620 ऑपरेशनल यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली उसमें आते हैं। हेल्थ एंड ओटीसी यूनिट्स इस वक्त पाकिस्तान में 384 जो हैं उनको एनलिस्टमेंट दी गई है। उनको हमने अपने जो बाकायदा इंस्पेक्शंस के बाद उनको एक प्रोसेस के बाद इनको एनलिस्टमेंट किया गया इनको। फिर मेडिकल डिवाइसेस यूनिट्स 20 के करीब हैं। ड्रग इम्पोर्टर्स 900 इस वक्त हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली। हेल्थ एंड ओटीसी जो इम्पोर्टर्स हैं वो 707 के करीब हैं। मेडिकल डिवाइसेस जो लोग इंपोर्ट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो 460 हैं।
इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड ड्रग्स अप्रॉक्सीमेटली 65,000 हैं। हेल्थ एंड ओटीसी प्रोडक्ट्स जो रजिस्टर्ड हैं वो 16,000 हैं, और मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो 1610 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली। अब थोड़ी इसमें कोई 15-20 का इजाफा भी हो गया होगा। तो ये तकरीबन हमारे पास इस वक्त ये रेगुलेटरी लैंडस्केप पूरे मुल्क का एक ब्रीफली आपके सामने हमने पेश किया। जी, ड्रैप्स पाथ टुवर्ड्स रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग, ये जो जिस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, ड्रैप एक्ट 2012 का जिक्र हुआ, ड्रग एक्ट 1976 का जिक्र हुआ। ड्रैप एक्ट 2012 के हवाले से अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई। ये डिफाइन करता है फंक्शंस ऑफ द पॉलिसी बोर्ड को, फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी को, फंड, बजट एंड अकाउंट। ड्रैप एक्ट में ये सारी चीज़ें बयान कर दी गई हैं। पार्ट टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस उसका पार्ट है, प्रोहिबिशंस हैं, ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेंस एंड देन पावर एंड प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर्स। ये सारा का सारा जो है ड्रैप एक्ट का पार्ट है। फिर ड्रग एक्ट जो 1976 है उसको भी इसका पार्ट बनाया गया, और जो रूल्स ड्रग एक्ट 1976 के तक बने थे उसको भी इसका पार्ट बनाया गया। तो ये एक बड़ा फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को, ड्रग एक्ट तो पहले से मौजूद था, फिर ड्रैप एक्ट को भी उस ला के तो इसके स्कोप को वाइड किया गया। अभी आप देखें रेगुलेशंस कौन कौन सी हैं, ये पीछे जरा, रेगुलेशन ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, regulations for sale of drugs, regulations for import of drugs, फिर central licensing board, registration board। central licensing board जो है वो licensing के लिए बना है of the pharmaceutical units। registration board registration of drugs के लिए। एक appellate board है जो कि ड्रैप एक्ट के तहत बना हुआ है। कोई अपील बंदा अगर कोई किसी भी डिसीजन से जो हमारे बोर्ड्स हैं उससे अगर वो एग्रीव्ड है तो वो एपलेट बोर्ड के पास आता है, और एपलेट बोर्ड जो है तो उनकी अपील्स को सुनता है। फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट और लेबोरेटरी टेस्टिंग जो है उसी के अंदर आते हैं। प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स का मैंने जैसे पहले जिक्र किया, और इसी के तहत जो हम लाइसेंसेस को कैंसिल करते हैं और सस्पेंड करते हैं, और इसी के तहत हम जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है उनको हम कैंसिल करते हैं और सस्पेंड करते हैं। जो हेल्थ एंड ओटीसी रूल्स 2014 उसके तहत हम आप देखेंगे प्रोसीजर फॉर एनलिस्टमेंट दिया गया, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया उसमें है, एनलिस्टमेंट इवैल्यूएशन कमेटी एक काम करती है, ये सारा ये उसमें डिफाइन की गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनलिस्टमेंट होल्डर ये उसका पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा उसको एक्सप्लेन किया गया है, और प्रोहिबिशंस हैं हेल्थ एंड ओटीसी रूल्स के अंडर। ये ब्रीफली देने का मकसद ये है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चले कि अब हमारा स्कोप कितना वाइड है और क्या चैलेंजेस है और हम कहाँ खड़े हैं। फिर मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017, ये भी तकरीबन वही काम मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंसेस हैं फॉर मेडिकल डिवाइसेस, टाइप्स, प्रोसीजर्स एंड कंडीशन से डिफाइन करता है, रिन्यूअल, चेंजेस एंड कैंसलेशन ऑफ दीज licenses, registrations, classification and grouping of medical devices, enlistment and registration, enlistment procedure and renewal, conditions and cancellation। ये सारी की सारी वही चीजें जैसे कि हमने पहले बताया, import and export of medical devices, labeling and responsibilities and prohibitions, ये इस इन रूल्स का पार्ट है जी। ड्रैप्स रेगुलेटरी गुड प्रैक्टिसेस, इम्पार्शियलिटी। अब ये चार चीजें मैं बयान करूंगा और आप को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। इम्पार्शियलिटी, रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी डिसीजंस शुड बी इम्पार्शियल इन ऑर्डर टू बी फेयर एंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो है पाकिस्तान जैसे माशरे में कुछ चैलेंजेस हैं, ये जो मैं आपको भी जिक्र कर रहा हूँ।
उन चैलेंजेस को देखते हुए टू रिमेन इम्पार्शियल, और आगे आप देखेंगे एविडेंस बेस्ड और एथिकल और लेजिटिमेट, द बेस्ट सोल्यूशन हमने ये देखा कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो एविडेंस बेस्ड हो, वो इन्फॉर्म डिसीजंस हो, और वो एक ट्रांसपेरेंट, विजिबल और ट्रेसेबल प्रोसेस के थ्रू हो। वो ट्रांसपेरेंट, विजिबल और ट्रेसेबल प्रोसेस जो है वो हमें अंदाजा था कि ऑटोमेशन से ही मुमकिन है। तो इसलिए हमने ये गुड प्रैक्टिसेस को अचीव करने के लिए हमने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो बनाए, जो जिसके ऊपर हम बुनियाद खड़ी करना चाह रहे हैं और करने जा रहे हैं, वो एक ऑटोमेशन की एक बुनियाद थी। तो ये इम्पार्शियलिटी, ये गुड प्रैक्टिसेस में आप हमारे डिसीशंस जो पिछले हमने कुछ अरसे में लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जी हमने इस चीज़ को दर्जा उत्तम इस चीज़ को जो है वो एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। फिर लेजिटिमेट regulations and regulatory decisions should be in line with the applicable laws of the land। ये दूसरा एस्पेक्ट है कि जी हमारे जो डिसीशंस जो इस वक्त गुड प्रैक्टिसेस में आते हैं वो हमारे रेगुलेशन से, रूल से, लॉ ऑफ द लैंड से मुतसादम ना हो। तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मैं समझता हूँ कि हम कामयाब हैं। इसके ऊपर फर्दर बात भी हो सकती है, और आपकी तरफ से भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उस हवाले से भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये हमने कोशिश की है कि ये बिल्कुल जो है वो लॉज और रूल्स के दायरे में रह के फैसले किए जाएं। फिर जैसे कि बताया, एविडेंस बेस्ड, द साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेसिस ऑफ रेगुलेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल, डेटा ड्रिवन एंड एक्सेसिबल। ये CTT फॉर्मेट का नफाज और बहुत सारा जो डेटा हम डिसीजन करने से पहले लेते हैं वो एविडेंस बेस्ड डिसीजंस के लिए ही उसको लिया जाता है। फिर एथिकल, रेगुलेटर्स शुड अवॉइड एक्चुअल और परसीव्ड इन्फ्लुएंस बाय बीइंग ओपन एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर डिसीजंस। सो एथिकली हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समझते हैं कि जी ट्रैप्स रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस में चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हमारा वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट हो। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ ड्रैप। आप देखें हम कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस की बात हुई, SROs की बात हुई, ऑपरेशंस वो हमने जिक्र किया, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शंस, ऑटोमेशन, इन सब के लिए ऑटोमेशन में आगे जाके आपको बताऊंगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। डिजिटाइजेशन, इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन, ये सारे पाथवेज हैं जो हमने एक ड्रैप को इवॉल्व करते करते हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और काफ़ी टाइम जो पाथवे गुजार भी चुके हैं। हमने 42 लाख पेपर्स को डिजिटाइज किया। ये 42 लाख पेपर्स, अब पूरा रिकॉर्ड जो ड्रैप का पिछले 15 साल का डिजिटाइज है। एट वन क्लिक ऑफ बटन आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर एनफोर्समेंट के ऊपर हमने तवज्जो दी, एक जो इवॉल्व करते करते कि जो स्पूरियस, काउंटरफीट, अनरजिस्टर्ड ड्रग्स हैं, उसका एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि हम अगर कोई मौजूद हैं ऐसी चीज़ें तो उनको प्रॉपर लॉ के मुताबिक उनके हवाले से एक्शंस लिए जाएं, और वो एक्शन लेने के लिए हमने एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की फॉर एरेडिकेशन ऑफ स्पूरियस एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स। ये टास्क फोर्स फेडरेशन और चारों सूबों और सारे फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ मिलकर बनी है, जिसमें सारे इंस्पेक्टर्स प्रोविंसेस के और फेडरल के ये एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। एक मैसेज में अगर किसी जगह भी कोई कंप्लेंट है तो उसके ऊपर जो है वो इन्फोर्समेंट एक्शन जो है, तो ये हम करते हैं। फिर फ्यूचर हम कहाँ देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप रेगुलेशंस, ऑपरेशंस जो डिस्कस की, और फिर जो ऑटोमेशन और इन्फोर्समेंट जो जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक लेके आके हम अपनी अथॉरिटी का फ्यूचर एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखते हैं। और उसके लिए
हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बॉडीज हैं उनकी सर्टिफिकेशंस जो हैं ली जाए। मिशन हमारा टू इंश्योर एक्सेस ऑफ सेफ क्वालिटी एंड एफिकेशियस मेडिसिन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस and earliest availability of new treatment opportunities for the people of Pakistan. Working as a highly professional and ठीक है मिशन हो गया, आगे चलेंगे है वो उसमें। अच्छा, आफ्टर स्ट्रेटेजाइजिंग ड्रैप्स एवोल्यूशन टू ए मॉडर्न बॉडी, कंपैरिजन आप देखें, पहले इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम कहाँ खड़े थे और आज हम कहाँ। पहले हमारे पास हेल्थ एंड ओटीसी के हवाले से कोई रेगुलेशन नहीं थी, आज हमारे पास हेल्थ एंड ओटीसी के हवाले से ओवर द काउंटर जो मेडिसिन हैं वो हमारे पास रूल्स मौजूद हैं और वो नाफिजुल अमल हैं। पहले हमारे पास मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं थी, आज हमारे पास मेडिकल डिवाइसेस रूल्स मौजूद हैं, जिसकी बेसिस पे हमने वेंटिलेटर्स को भी जो है वो रजिस्ट्रेशन दी है और बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस को भी। फिर पहले हमारे पास एक बड़ा मैनुअल सिस्टम था रजिस्ट्रेशन का, और मैं कह सकता हूं कि पैथेटिक सिस्टम था। आज हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड सीटीटी बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। हमारे सारे ऑपरेशंस मैनुअल थे पहले, अभी हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो पायरिन्स लॉन्च हमने किया है, पाकिस्तान इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। अब हमारे सिस्टम्स जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, जिसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं और पूरे के पूरे ऑटोमेटेड हैं। फिर इनएफिशिएंट क्लिनिकल ट्रायल ओवरसाइट था पहले, अभी हमारे बायो स्टडी रूल्स जो हैं वो हमने बनाए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स ओवरसाइट के लिए। और अब हम, आपको पता होगा कि हमने जो कोविड वैक्सीन के हवाले से एक बहुत बड़ा ट्रायल पाकिस्तान में करवाया, 18,000 उसमें सब्जेक्ट्स थे और उस बेस पे हमने कैनसाइनो वैक्सीन को जो है वो रजिस्ट्रेशन भी या इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी ग्रांट की। रिस्क बेस्ड जीएमपी ऑर्डर्स हम अब कर रहे हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक जदीद आपको पता है रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट है। अब हमने अपने 25 इंस्पेक्टर को इंटरनेशनली ट्रेन करवाया है, अमेरिका और कनाडा से ये ऑडिटर्स, उन्होंने इन्हें ट्रेन किया है और इन्हें सर्टिफिकेशंस ग्रांट की हैं। अब हम रेगुलेटरी जो इंस्पेक्शंस हैं वो रिस्क बेस की तरफ हमने ट्रांसफॉर्म किया है। नेक्स्ट जी, स्ट्रेटेजी एंड अचीवमेंट्स, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। गैप एनालिसिस करने के बाद रेगुलेशंस, आप देखें इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस, ये बात हो चुकी है। ऑटोमेशन, ये सारी स्ट्रेटजी के तहत हम इसको मूव कर रहे हैं। फिर एनफोर्समेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे मामलात हैं, और ये सारा एक आप देखें स्ट्रेटजी कल्मिनेट करती है WHO एक्रीडेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और सिस्टमेटिक जो है वो रेगुलेटरी बॉडी जो है वो हम बनने की तरफ इवॉल्व कर रहे हैं। जी नेक्स्ट। जी, सेलिएंट अचीवमेंट्स, इस पे आप थोड़ा सा वर्किंग की ज़रूरत है। कुछ तो हम बयान कर चुके हैं और कुछ इसमें से जिस पे फर्दर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। ये जो बयान कर चुके हैं वो जस्ट मैं आपको सिर्फ पढ़ूंगा। ड्रैप एक्ट, हेल्थ एंड ओटीसी एक्ट, बार कोडिंग रूल्स, जो बहुत बड़ा काम ड्रैप ने किया वो बार कोडिंग रूल्स थे। हमने 2D बार कोड सिस्टम जो है वो नाफिजुल अमल किया। अब आप अपने मोबाइल से स्कैन करके ड्रग के जो बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स के, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, कब मैन्युफैक्चर हुई, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसको आप कर सकते हैं। तो ये 2D बारकोड सिस्टम राइज है, तकरीबन 1/3 ऑफ द कंपनीज जो हैं उसको कर चुकी हैं, बाकी जो है इस तरफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। अमेंडमेंट्स हमने की अपने रूल 26 ऑफ द ड्रग्स लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजिंग रूल्स में CTD फॉर्मेट के लिए। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि आज हम मैनुअल सिस्टम से एक प्रॉपर CTD फॉर्मेट सिस्टम पे आ गए हैं। फिर फार्माको विजिलेंस रूल्स हमने ड्राफ्ट किए हैं। बायो स्टडी रूल्स 2018 हमारे पास मौजूद हैं, और एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में
हमारे पास मौजूद है इस वक्त। हम इन सारी चीज़ों से जो मैंने आपको बताया वो हम करना क्या चाह रहे हैं कि WHO ग्लोबल बेंचमार्किंग की तरफ आ रहा है। हमारा जो पर्पस है इस वक्त वो WLA जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड अथॉरिटीज का स्टेटस कहते हैं, जो कि लेवल 3 के तकरीबन इक्वेट करता है, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं इन सारे प्रोसेस से। जो ऑटोमेशन है, इन्फोर्समेंट है, जो चेंजेस हम लेके आए हैं। हमारा एक ऑडिट हो चुका है और हम फर्दर एक जून में मेरा ख्याल है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी एक फर्दर जो सेकंड ऑडिट जो होगा वो उसके लिए हमारे पास WHO की टीम आएगी एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। फिर हम कोशिश कर रहे हैं WHO सर्टिफिकेशन ऑफ सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब कराची के लिए। इसका ऑडिट हो चुका है और बहुत अच्छे कमेंट्स के साथ उन्होंने, इसमें कोई क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं आई जो लास्ट इसका ऑडिट हुआ है, और बहुत अच्छे कमेंट्स के साथ उन्होंने हमें इसको क्लोज किया था। और हम बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हम प्रॉपर इसका WHO सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर ये हम WHO WLA के लिए और CDL की WHO एक्रीडेशन में हमने बहुत मेहनत से ये इतने करीब पहुंचे हैं। फिर अप्सला मॉनिटरिंग सेंटर की मेंबरशिप हमारे पास मौजूद है। फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम PICS, इसमें हमने प्री एक्सेशन फेज को कंप्लीट कर लिया है और हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर हमने एक जो कंसल्टेंट हैं उनको करीब उनसे बात हो चुकी है और वो विद इन नेक्स्ट 15 डेज वो हायर हो जाएंगे और फिर हम उससे अगली फेज में इंशाल्लाह ताला मूव कर लेंगे। फिर हमारे पास एक लैब है, नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर बायोलॉजिकल्स, ये इस्लामाबाद में है। ये वैक्सीन्स और बायोलॉजिकल की टेस्टिंग के लिए है। हमने इसको 3 फेजेस में इसके ऊपर काम शुरू किया है। ये अभी बहुत पीछे हैं इसमें। पहली फेज हमने पूरी कर ली है, अब हम सेकंड फेज की तरफ जा रहे हैं और थर्ड फेज WHO एक्रीडेशन और WHO प्री क्वालिफिकेशन होगी इसकी। नेक्स्ट, ड्रग रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ट्रैक एंड ट्रेस। अब ये ऑटोमेशन के कुछ पार्ट्स हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस वक्त ड्रग रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम DRIS के नाम से फॉर ट्रैक एंड ट्रेस हमारे पास मौजूद है। ड्रैग टीम सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है ऑपरेशनल लेवल पे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में जो हमारे सैटेलाइट ऑफिसेज हैं उसमें जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है उसको टेक केयर करने के लिए ड्रैग टीम सॉफ्टवेयर डेवलप किया। फिर पायरिम्स की बात आपसे हो चुकी है कि पायरिम्स जो पाकिस्तान इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बेसिकली अब हम फर्दर इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, सारे प्रोविंसेस को इस पे एक्सेस देने जा रहे हैं। तो जब एक कॉमन QMS सिस्टम की बुनियाद इससे रखी जाएगी कि पाकिस्तान के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और जो सारे प्रोविंसेस हैं वो इस पायरिम्स के साथ जो है वो इंटीग्रेट होंगे। फिर हमने ऑनलाइन फी कर दी, अब सारी फी जो है वो ऑनलाइन होती है। पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता था कि जी वो उन्हें ऑफिस में विजिट करना पड़ता था। हमने उनके लिए ऑनलाइन NOC का इजरा शुरू कर दिया हुआ है, तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं। अब पाकिस्तान में कोई भी पेशेंट किसी भी जगह पे बैठ के कंप्यूटर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है और उसको जो है वो NOC ग्रांट कर दिया जाता है। VGFlow डेटाबेस फॉर ADRs हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर काम हो रहा है। जियो मैपिंग सारे लाइसेंस यूनिट्स की पाकिस्तान में हो चुकी है और एक मोबाइल ऐप नेशनल जो मेडिसिन लिस्ट है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, उसकी मोबाइल ऐप हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक नेशनल टास्क फोर्स ऑन एरेडिकेशन फॉर स्पूरियस एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनी थी और इसने लाखों में पिछले 3 साल में इंस्पेक्शंस की हैं। इसका डेटा भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। इसमें हमने बहुत ज़्यादा कंप्लायंस को स्ट्रिक्ट किया और एक रैप का टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल करके हमें बता सकते हैं अगर किसी जगह पे कोई वायलेशन मौजूद है। फिर हमारी जो कैंपेन है इस टास्क फोर्स के तहत अगेंस्ट स्पूरियस और अनरजिस्टर्ड काउंटरफीट मेडिसिन जो है वो
होती रहती है और हम बहुत सारे एक्शंस हम कल्प्रिट्स के एप्रीहेंड किया है, उन्हें जेलों में भेजा है और उन्हें उनके खिलाफ FIRs हैं और इससे मार्केट सर्वेलेंस जो है उसको बहुत बेहतर किया गया। नेक्स्ट। फिर आप देखिए ऑफिस एंड टाइम मैनेजमेंट हमने की है, जो बेस्ट ऑपरेशनल आउटपुट लेने के लिए अभी डॉक्टर वैद भी मौजूद है। हम एक जो आयरस सिस्टम हाजिरी के लिए वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं। विजिट्स जो हैं मैनेजमेंट ऑफ रेगुलेटरी रिप्रेजेंटेटिव्स उनको कंट्रोल किया है, उनके लिए टाइम है और वो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत SOP के तहत वो मिल सकते हैं हमारे जो ऑफिसर्स के साथ। और हमारी जो एक हॉल मार्क है वो मीटिंग्स हैं स्टेक होल्डर्स के साथ टू रिजॉल्व इश्यूज अगर कोई होते हैं, और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बाय डिस्पोजिंग ऑफ पेंडेंसी। हमारा जो अल्टीमेट गोल ये है कि जी SOPs के मुताबिक डिफाइंड टाइमलाइंस के मुताबिक हम अपनी जो है वो काम को करें, अपने ऑपरेशंस को करें और पेंडेंसी जो है उसको हम एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन उसमें ये ख्याल बिल्कुल रखा जाता है कि अगर हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की एफिकेसी और सेफ्टी के हवाले से, तो वो उसको थ्रू नहीं किया जाता। उसके लिए हमने क्यों बनाई है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे और अगर कोई हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है उसको भी बड़ा ओपनली शेयर किया जाता है और एक प्रोसेस के तहत एक डिफाइंड SOPs और डिफाइंड टाइमलाइंस के मुताबिक काम किया जाता है। जी फिर आप देखें GB टूल सेल्फ असेसमेंट की है, 232 IDPs हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं जिस पे इस वक्त ट्रैप में काम हो रहा है। आप इसको इस तरह समझें कि 232 डॉट्स हैं जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये जब 232 डॉट्स कनेक्ट होंगे तो एक इमारत की शक्ल ये इख्तियार करेंगे जिसके ऊपर ड्रैप की बुनियाद जो है वो मजबूत बुनियाद जो है हम रखने जा रहे हैं। ये असेसमेंट टूल्स जो हैं हमारी टीम्स, जो हमारे जो ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स इनके ऊपर डिप्लॉय हैं और ये वो टूल्स हैं जिनको लेके और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स को लेके हम WLA एक्रीडिटेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग है USP और WHO के साथ। हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो रेगुलर पार्ट है हमारी अथॉरिटी का, रेगुलर पार्ट। हम चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो ऑडिटिंग का हो, चाहे वो कंप्लाइंस का हो, चाहे वो हेल्थ एंड OTC के हवाले से हो, तो हम इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस में, और इसमें हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जिसमें USP और WHO वो हमारी उन्होंने काफ़ी हेल्प की। फिर CDL प्री क्वालिफिकेशन प्री असेसमेंट, इसमें हेल्प की हमारी WHO ने। NCLB प्रेपरेशन में हमारी WHO जो प्री क्वालिफिकेशन के लिए प्रेपरेशन हो रही है उसके लिए WHO की तरफ से हमें हेल्प मिली। और हमारे पास इस वक्त ISO सर्टिफिकेशन मौजूद है ड्रैप के पास। नेक्स्ट। जी ये वही ISO सर्टिफाइड कुछ जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस गाइडलाइंस, ISO सर्टिफिकेशन, टाइम टैग प्रोसीजर्स, QMS के तहत 25 गाइडलाइंस हमने इशू की हैं QMS के तहत। 140 SOP डॉक्यूमेंट्स हैं वो QMS के तहत, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हमने इनको किया है। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये हमारी पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट जो कि QMS के तहत हम कर रहे हैं। ड्रैप्स एवोल्यूशन आउटपुट में आप देखेंगे फार्मा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हमने रेमडेसिविर, फेविप्रावीर और बेरीसाइटानिब की कोविड के लिए दी। हमने जो वैक्सीन्स हैं 6 इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी कोविड वैक्सीन्स को। ऊपर भी जो मेडिसिन के नाम आपको बता रहे हैं वो भी कोविड के हवाले से। और जो रेमडेसिविर है ये तकरीबन 30 मुल्कों में पाकिस्तान से बना हुआ वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स देखें, उसका ट्रैप का जो
फ्रूट जो हमने लिया वो क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से पहला क्लिनिकल ट्रायल जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, जिसके तहत हमने पाकिस्तान में वैक्सीन जो कोविड की कैंसाइन और ईयूए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांट की, चाइना में उसके बाद ग्रांट की गई। हमने ट्रायल इधर किया, डेटा डिसेमिनेशन इधर हुई, फिर कनाडा से उसको असेस किया गया, फिर हमारी कमेटीज ने इधर असेस किया और उसके बाद हमने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांट की। मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से हमने बताया कि बहुत सारे पीपीईस की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की हमने अप्रूवल्स दी। लोकली मेड वेंटिलेटर्स पहली बार पाकिस्तान में उनको अप्रूव किया गया। कार्डियक स्टेंट्स जैसे हमने जिक्र किया, वो नम्स के बने हुए वो पहली बार पाकिस्तान में उनको रजिस्टर किया गया। और एक्सपोर्ट क्वालिटी मास्क एंड सैनिटाइजर्स, ये इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड है और पूरी दुनिया में ये जा भी रहे हैं। ये एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू था ड्रैप का, कुछ अचीवमेंट्स का और चैलेंजेस जो उस दौरान आए और जो फ्यूचर में भी आएंगे, वो आप सवाल करेंगे तो फिर आपसे मजीद भी इस पे डिस्कस कर लेते हैं। Thank you, Asim bhai. This was great. A journey of DRAP from a institution to a world-class international institution. So I would like to now ask the panelists one by one for their comments, and before their comments, they can introduce themselves in one line. And in my view, first is Dr. Syed Uzair. So you're first. Please go ahead, Uzair bhai. Thank you very much, Dr. Shahid Rafiq, and thank you very much, Mr. Asim Rauf. I think that's a really great presentation, and you have really shared some of the achievement, though I am private that a lot of work has been done so far, and many more is in the pipeline. So on all the forums, I do share the progress being made at DRAP. So I'm also a director, Canada Pakistan Research and Development Council, and be with Apna Merit since they started this activity. So I'm quite regular. So that's why I have so much of information. Thank you very much for not sharing some of the very difficult journey. Really, that is the political commitment, re-engineering, because the things, they are linked one with the other. And so far, there is no permanent chief executive officer of DRAP, but I do expect a good news in the coming like 1 week or 2 week. That because the first thing is for any independent authority that there should be a competent long-term commitment, long-term leadership, and only then you can achieve something. This is just not a question really, this is a comment. And I was part of it when I visited Pakistan. So I'm just hoping that this the news should come out in the coming 1 or 2 weeks, because that is the first step. A permanent person should be in place, and he should have a vision and then the strategy to strategize all the things. So from the evolution perspective, I was very close to the Drug Control Authority back in 2012. When Dr. Rashid Juma was there, and it was a different structure. So I have seen and I can compare the progress made between 2012 and 2021. So my question to Asim Rauf Sahab is that side by side, there's a lot of work is going on in medical devices. But my feeling is we need to do a lot more, as you are doing with the pharmaceutical and the over-the-counter medicine and health and OTC stuff like that, because some of the diagnostic, they have a great bearing. We are doing the HIV activities over here, and there is no standardization of screening and for the diagnostic of HIV, or the blood screening for hepatitis B and C. And imagine the disease burden, which is huge, combining HPV and HCV, it's close to between 7 to 9%. And the screening practices, we had a seminar over here in many of the public sector lead institution in Lahore.
I'm not talking about something like Kanakacha or Mia Chanu. Even in Lahore, Rawalpindi, and Peshawar, they are using extremely substandard devices to screen the blood. And that's the approximately 40% of the total, which is really, from the public health perspective, is a big thing. So apart from the provincial regulation, I know some of these regulatory activities are at a provincial level or Pakistan Medical Commission, but despite that, I think at least to begin with, like the blood screening, like the COVID screening, because we earned very strange comments from UAE and many government, because we need to extend our regulation apart from enlisting that we should have a clear policy from these public pandemic issues. Sorry for taking so long, but this is very, very important. My humble submission would be really that to begin with, please start it no sooner, you get an opportunity after your formal position, that at least these things, we are conducting webinar, a series of HIV and stuff like that. And as of today, really, one of the key issue is the reuse of syringe. I think there is now a ban on the import of regular disposable syringes. That's a good news. But for the kids, I think this is totally unacceptable. And by a stroke of pen, the DRAP can do it. And with a big difference, we are doing like 3.5 million blood donation every year. And if the screening is conducted, 40% of those sample on those type of kits at the public sector, which is like device which costs you about 20 or 30 rupees, and nowhere in any developing country, even in Africa, they are doing it. So sorry for such long time. Would you like to comment, please? It's a great point. Asim bhai, Dr. would you like to? मैं बिल्कुल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उजैर साहब ने बड़ी एक अच्छे और सेंसिटिव टॉपिक की तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं उन्होंने एक जिक्र किया कि जो सीट ऑफ द और पोस्ट ऑफ द सीओ एट द मोमेंट, जो कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज नॉट परमानेंट सो फार। तो डेफिनेटली जब एक आप परमानेंट होते हैं तो एक ज्यादा एक स्ट्रेटेजाइज करते हैं, अपनी प्लानिंग को दूर रस भी करते हैं। उसके बावजूद जो हमने कोशिश की, और डॉक्टर साहब का तामन भी उसमें रहा, कोशिश ये की कि हमने एक इंसान की जान बचानी है। एक अथॉरिटी हमारी ड्रैप को इस तरह बनाया जाए, इतना ट्रांसपेरेंट और विजिबल कर दिया जाए कि एक इंसान की जान बचे। अब इस केस में जैसे कि किड्स की बात है, हमने बड़ा बैडली नीड महसूस की कि जो डिसीजन मेकिंग में हमें जो लोग चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, वो इस वक्त उस तरह की डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास बोर्ड में मौजूद नहीं। पहले तो यह है कि वी हैव टू एडमिट के कौन कौन से एरियाज गैप्स हैं जो वी हैव टू फिल दोज गैप्स। तो जब बिल्कुल हमें पता है, और उसके लिए हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो दो तरह काम कर रही है। एक नया एक्ट है जिसके ऊपर काम कर रही है, और उसके साथ साथ एक रेगुलेशंस में चेंज कर रही है। उन रेगुलेशंस को चेंज करके हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल्स जो हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पे 3-3 साल के ले आए। अच्छा, अब जब हमारे पास वो डाइवर्सिफिकेशन आएगी तो हम ये जो इश्यूज हैं विद रेफरेंस टू मेडिकल डिवाइसेस के, जो चूंकि ये नया सब्जेक्ट है, उस तरह नहीं है, हम उसको प्रॉपर्ली और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब ने की है, दैट इज वेरी राइट, और वी विल टेक एक्शन। इस तरह जो भी जैसे बताया कि अगर कोई सब स्टैंडर्ड ऐसी चीजें हैं और ड्रैप उसके ऊपर कर सकती है, आई वुड रिफर इट टू द मेडिकल डिवाइसेस बोर्ड के इसके ऊपर फौरी तौर पे एक पॉलिसी बना के और एक मूवमेंट की जाए इस तरह। जी, thank you, Asma. So I see Dr. Junaid has a question, so I'll invite him next in the panel. Please introduce and limit all comments for all panelists because we are almost over time to 1 to 2 minutes, please.
Assalamu alaikum, Dr. Rauf. Thank you so much for this excellent presentation. I'm Junaid, neurocritical care stroke and epilepsy specialist here in US, Dallas, Texas. I just wanted to ask two questions. Number one, that FDA recently approved virtual reality for chronic pain. The other thing they approved for virtual reality application was neurosurgical learning application. That's number one. And then number two, Germany is also working on DIGA, which is digital applications as prescription. Both of these are significant innovations. And to be honest with you, we have a lot of talent in Pakistan to develop them. So are there any plans for, as you used the word therapeutics, that was so beautiful, digital therapeutics to be part of the regulatory approval process? The second question I have is that for example, I'm personally involved in a company right now that is creating a new catheter and an aneurysm occlusion gel. And we are, of course, testing it here in US. Are you approaching an innovation in medical devices that we can bring those trials to be in Pakistan from the get-go, rather than just going through the FDA, but rather also have a complementary trial in Pakistan as well? Thank you very much. Both of the questions, I would try to reply with the same answer as, whether it is digital therapeutics, innovative technological processes, or, the other innovative devices. With reference to trials or with reference to its enlistments, I'm very open to say that DRAP is very receptive to take these on. And this we have demonstrated very vividly through the actions we have taken since for the last, I would say, 1.5 years. So if you do have such the suggestions or such articles, devices that we need to introduce into Pakistan, you would find it an easy process, I would say. Now, the only thing is that, if you want to get these trials, clinical trials here in Pakistan, there is a process. There is a process. And that is also, with the passage of time, we have developed a very robust and scientific process. So we can definitely follow that process. And we are here to accommodate all of those innovative things, Thank you. Ubaidullah Malik, you're next up. You want to add something? You're also the director in DRAP to Dr. Asim's presentation. In fact, most of the things have already been shared by Asim Saab, and as panelist in the rest of presentation, my point of view is always that DRAP, definitely I would not say that we have achieved anything par excellence with any robust regulatory authority, but please rest assured that we are on the way of harmonization, and we have achieved some of the milestones, and in a couple of years you will see that DRAP will be on the arena of the global regulatory authorities. Thank you. Actually, I just want to make a comment. I'm very grateful for this presentation. And then here in US, we have seen ivermectin issue, multiple drug issues, devices breaking, and then getting recalled. So I am very grateful for the strides that you have made. And with this presentation, it seems that the vision is very strong. Thank you very much to both of you. Thank you, Junaid. I'll invite now Umar Hayat, a giant in pharmaceutical. Umar, go ahead, introduce yourself and give your comment or question. Very much. A great presentation. Name is Umar Hayat. I work as a VP of CMC and supply chain. My experience is really from discovery through commercialization. Have been in interaction with several regulatory bodies like FDA, European Medical Agency as well as with China. So I interact with a lot of regulatory folks. Great presentation, and I will say congratulations to your team as well as to you. Under your leadership, they are really moving fast.
I will say, I will rather make a comment, and you can take it as a question if you want. The perception that DRAP is stagnant for sure is not true. Is DRAP moving slowly? Probably there is some reality in that. Are we moving with the pace of regional or global regulatory authorities? Absolutely not. And I think Abdullah was very much on the same page. And I think there is a room for us to move faster than we have been, particularly because we really need to catch up the time. So that would be the one thing. The other thing, I visited your office last year. I was feeling pity for the customers, I mean, the people who were coming to your office, pity for the people who are working in the office, and pity for the space as well. Everywhere there were the papers, the files lying around, the dust over the files. So I think the digitalization is the way to go. And I'm glad that you guys are already working on it. Thank you. Thank you very much. I think I would also let you know the project that we are bringing in. First, I would say, that we are building our block on 232 institutional development plans. These plans are from WHO. And when we connect all those dots, we can see building that is strong and that rests on some fundamental principles. So we are, on the way. Second, the pathetic situation that you saw, you are absolutely right. What we did, we have tried, and we are going to eliminate the human involvement in all of these processes. For that, we are introducing a digitized or automated clearance system in Pakistan. We have deployed this system, and we are going to inaugurate in December. Second thing, we have deployed e-governance in DRAP. That means no manual file. All of this, the operations would be automated. So meaning thereby that, everybody and every higher up would have an access to what is happening in the DRAP. And when there would be no human involvement, means there would be less clutter. And I have already talked to Dr. Beth. He is also holding the portfolio of Director Edmund. We are moving all of this stuff, extra stuff from here to NCLB, one of the room, we have extra room over there. FDSL, a Federal Drug Surveillance Lab. We have one extra room, so we are moving that stuff to over there. After that, we are going to create an atmosphere that would be quite conducive for for an environment, clutterless, free of papers and free of that pathetic situation that I can envision. But having said that, this is not an easy thing to do such a work in Pakistan. There are hurdles, there are challenges, and my team has taken over these challenges. That's why I say this is an amazing journey. And, as Dr. Beth rightly said, I am committed. Well, you can say, with the last breath I have, or last minute or last second, I am serving in DRAP to make it compatible with the international regulatory bodies. The slogan is that, why not we? What are, the special things that, in other parts of the world, people have? So that I always tell to my people, tell to my younger officers, we have to dive into the river, to know how to swim. So we are on the way. There are challenges, and I'm sure when you will come next time, you will see a difference, inshallah. Thank you, Dr. Asim. Obviously, the task is uphill, but the light at the end of the tunnel is the commitment and vision
of you and your team, and Dr. Ubaidullah. I have met a really great team, and we hope that, you know, even if the process is slow, obviously there's frustration that it can be better, it can be speedier, but if the direction is right, I think that Qibla agar hamara durust ho gaya, then the manzil jo hai, destination, obviously we would like it to, because the world is moving fast. So I can understand Dr. Umar Hayat's point that if we move slower, then we will always be behind, and we want to catch up. So with that, I think I really appreciate Dr. Asim Rauf coming today, and all the panelists, and especially our audience. Again, a reminder that Apna Merit is coming to Pakistan in person in later this month, and the journey that we started in March of this year with exploring the landscape of research and innovation in healthcare in Pakistan is coming to its what we call grand finale, because we will be able to meet in person all the people that we met virtually. And you have been, the attendees have been, you know, with us. And if all of you or any of you can join us in Pakistan, the dates are 21st to 23rd in Rawalpindi Medical University. The main, our main program is on 22nd from 8 a.m. to 2 p.m. But there's a very interesting workshop on AI a day before, on 21st, again in RMU. So I welcome all of you and request that you all join there. And we probably will visit DRAP also. We'll take time, I think, the next day on 23rd, and we'll finalize that plan to sit down with Dr. Asim again and Dr. Ubaidullah. Thank you. One point, I'm looking forward to receive you in DRAP. I just want to let you know, Dr. Ubaid is a prized officer of DRAP. And I hope, if we have a few more officers like him, so we can achieve our target. I totally agree. Totally agree. So we are moving towards that. And when I hope when you would come on 23rd, you would see a difference, inshallah. We are looking forward, and we will be joining that event also, inshallah. Thank you. Thank you all. Assalamu alaikum. We end our conversation today. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Bye.